Hello class, my name is Pranav Verma and I'll help you all deal with your chemistry subject. Today is our very first class and we'll begin with the first chapter itself. The chapter has been named Chemical Reaction and Equations. So I'll brief about the chapter a bit. In this chapter we are going to learn about what are chemical reactions, how to balance them and how to classify them among various categories. So beginning with the first point, let's just understand what a chemical reaction is or what a chemical change actually is. So as to understand what a chemical change is, our textbook is asking us to imagine some situations. The very first situation is an iron pan tawa nail is left exposed to humid atmospheres. कि जब आप किसी भी लोहे के पैन को या आयरन पैन को humid atmospheres में expose कर देते हैं तो क्या होता है? Let's just take it that way कि humid atmosphere मतलब वो atmosphere जिसमें moisture बहुत ज़्यादा होता है. And we all know कि iron moisture से react करता है, यानी water और oxygen से react करके rust में convert हो जाता है. आप सब जानते हैं कि लोहे पे जंग लग जाती है, तो the very same thing, rust is जंग, जो कि moisture और oxygen से react करके होती है. So this is a chemical change that's happening around us. The very next change is food is cooked. जब आप खाने को बनाते हैं, so raw food tastes something else and a cooked food tastes something else. तो ये change किस तरीके से आया है? Due to some chemical change. Another is food gets digested in our body. कि जब हम खाने को हमारी body में हजम करते हैं, digest करते हैं, so that's also a chemical change. The food that we eat is degraded by certain chemicals inside our body, जो उसको chemical composition को change कर देते हैं और वो food हमारी body में digest हो जाता है. So all this happening around us is more than a chemical change. ये सब कुछ physical change नहीं है, ये सब एक chemical change है क्योंकि यहाँ पर substance का chemical composition बदल रहा है. So let's just come to the point that how will we understand कि किसी का chemical change बदल रहा है या physical change हो रहा है. There are certain points on which we can count on कि हमारा chemical change हो रहा है या फिर physical change हो रहा है. So let's just think points of chemical change कैसे होगा? The very first point is change in color, कि आपको कलर के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं कॉपर का. कॉपर इज somehow a brownish element, कुछ ब्राउनिश टिंट देता है आपको कॉपर. बट कॉपर भी जब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है या कॉपर को भी आप मॉइस्चर के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं ग्रीन कलर की कोटिंग उस पर आ जाती है. सपोज इट्स कॉपर, तो कॉपर पे एक ऐसी ग्रीन कलर की कोटिंग्स आ जाएगी. समझ रहे हैं? इस तरीके की कोटिंग्स की वजह से हम कहते हैं कि कॉपर की यहाँ पर रस्टिंग हो गई है. जस्ट द सेम एज आयरन को आप लोग देखते हैं कि आयरन आपका किसी भी कलर का हो, आफ्टर द रस्ट इट्स समहाउ अ रेड कलर, समवॉट रेड कलर. सो चेंज इन कलर इज अ सिग्निफिकेंट नोटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज. कि केमिकल चेंज अगर हुआ है तो आपको कलर के अंदर चेंज दिखाई देगा इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. अगर केमिकल चेंज में आपको कलर का चेंज नहीं दिखाई दे रहा तो यू विल सी a change in smell. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि जब आपके घरों में खाना खराब हो जाता है तो आप उसे बता सकते हैं कि खराब हुआ है या नहीं है just by smelling it. Our mothers just do smell the what should I say, the rotten food and tells it that it's been rotten just by the smell. So smell is a significant notation of a chemical change. The very next point is change evolution of gas. आपकी बुक में चारों पॉइंट लिखे हुए हैं पेज नंबर 2 पर ऊपर की तरफ ये सारी चीजें लिखी गई है. सो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज आल्सो अ केमिकल चेंज. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से this is my bottle of cold drink. And I'm not that good at drawing, but I assume that it is a bottle of cold drink. So let's say यहाँ the cold drink has been filled up. मैंने कैप नहीं लगा रखा,
the cap is not there. तो after some time when you drink it, you will not feel the fizz inside your mouth, कि आपको वो fizz, वो fizzy effect जो होता है कोल्ड ड्रिंक का, वो महसूस नहीं होगा. Just because क्योंकि गैस जो थी यहाँ पर अंदर की तरफ वो इवॉल्व आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में. तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज बिकॉज द केमिकल कॉम्पोजिशन इज नाउ चेंज. क्योंकि पहले इस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती थी केमिकल कॉम्पोजिशन में, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई है. सो नाउ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉटल, सो इट्स आल्सो केमिकल चेंज, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. एंड इन सम केसेस वी सी अ चेंज इन टेंपरेचर एज वेल. कि कई बार केमिकल चेंज जो होता है वो चेंज इन टेंपरेचर से भी डिनोट किया जाता है. कैसे? जैसे कि आप लोगों के घर पे सब पे व्हाइट वॉशिंग होते हुए देखा होगा आप लोगों ने. तो व्हेन यू सी व्हाइट वॉशिंग कैसे करते हैं वो लोग कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स लेके आते हैं, व्हाइट कलर के कुछ ब्लॉक्स होते हैं और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं सो एज टू मेक दैट व्हाइट पेंट. तो जैसे ही वो उसको पानी के अंदर डालते हैं ना, आप देखते हैं कि वो जो बकेट जिसके अंदर पानी था, जिसके अंदर उन ब्लॉक्स को डाला गया है, वो बकेट एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है एकदम से और वहां से गैस निकलने लगती है. Because that particular material is now changing and undergoing a chemical change. You will see that later in this chapter. So for now, अभी तक हमने इतना सीखा है कि हम किसी भी chemical change को इन 4 पॉइंट से देख सकते हैं. That is change in color, change in smell, change evolution of gas और change in temperature. These 4 points are at page number 2 of your NCERT textbook. So this is the very basic idea of the chapter. हम इन सब से समझ सकते हैं कि हमारे chemical change को कैसे देखना है. Later on, let's just understand what a chemical equation is. So I'll send you the notes of everything that we are discussing right now. फिर भी for the instance, let's just understand what a chemical equation is. उससे पहले मैं आपको एक situation assume करवाना चाहता हूँ. See it as clear as you can. This is a magnesium strip. This is what? This is a मैग्नीशियम रिबन के नाम से भी जाना जाता है इसको. मैग्नीशियम इज अ मटेरियल जस्ट लाइक आयरन. सो इट्स अ मैग्नीशियम रिबन एंड व्हेन इट्स बर्न्ड, जब इसको जलाया जाता है तो यू सी व्हाइट फ्यूम्स, सफेद कलर की आग जलती है, व्हाइट फ्यूम्स. एंड आफ्टर दोस व्हाइट फ्यूम्स द रेजिड्यू दैट इज लेफ्ट, यानी उसके जलने के बाद में जो बच जाता है, दैट इज अ व्हाइट कलर पाउडर. व्हाइट कलर का पाउडर बच जाता है. तो इट्स अ सिचुएशन इन विच मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हमने जलाया है, तो व्हाइट फ्यूम्स के साथ जलेगा और लास्ट में व्हाइट कलर बन जाता है. तो आप मैग्नीशियम का कलर जो है वो व्हाइट नहीं होता, इट्स समवॉट अदर कलर. लेट्स अज्यूम इट्स लेट्स से ब्राउन कलर. अब वो ब्राउन कलर से व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया. तो यू कैन सिग्निफिकेंटली see a particular chemical change happening because of the change in composition as well as the change in color. तो इस particular chemical change को जब हम symbols की मदद से denote करते हैं, when a particular chemical change has been expressed in terms of symbols or annotations, then it is termed as chemical reaction or chemical equation. The particular definition is, I read it out to you. A chemical equation is a symbolic representation of your chemical reaction. कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का. जैसे रिएक्शन क्या होगी कि मैग्नीशियम रिबन जल करके व्हाइट कलर पाउडर में कन्वर्ट हो गया. दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन. और जब हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और केमिकल फॉर्मूला, जिसमें हम सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला को यूज करते हैं. जैसे इस केस में क्या हुआ है, आई विल राइट द इक्वेशन फॉर यू. The equation is that magnesium strip is reacting with oxygen and is converting to magnesium oxide. ये वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है एक्चुअली कि हमारा मैग्नीशियम स्ट्रिप जो है वो प्योर मैग्नीशियम मेटल की है, वो एयर की प्रेजेंस में जलती है. दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग. और वो एयर की प्रेजेंस में वो बर्न होती है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे मैं किस रूप में देख पाता हूं, जिसे मैं
व्हाइट पाउडर के रूप में वहां देख पाता हूं। सो दिस इज द केमिकल चेंज। इसमें मैंने क्या करा, जो भी मेरे सब्सटेंसेस थे, ये था और ये था, इसको मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये है जिसमें मैग्नीशियम रिबन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, व्हाइट कलर पाउडर में कन्वर्ट हो गया है। एंड द केमिकल इक्वेशन इज दिस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। सो दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन। अब इसके में कुछ एक चीजें होती है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। आप सबको नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट कि आप लोग अपनी नोटबुक्स में क्या लिखेंगे। सो यू बी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट लेटर और टू स्टडी इट अगेन लेटर आफ्टर द क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। यू विल गेट टू योर ऐप अगेन। सो लेट्स जस्ट से मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज my particular equation in symbolic representation मैं यहाँ लिख रहा हूँ। It is what? ये मेरा symbolic representation है। क्या यही केमिकल इक्वेशन हो सकती है? I can write it other way। ये मेरा सिंबल्स की जगह मैंने यहाँ इनके नाम यूज कर रहे हैं कि मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्या ये और ये कुछ अलग अलग है। तो बोथ आर केमिकल रिएक्शंस, बोथ आर लेट्स से वी आर स्टडीइंग both are chemical equations only, जो कि chemical reaction को represent कर रही है यहाँ पे। both are chemical equations, but this one has been represented with the help of symbols। magnesium का symbol है Mg, oxygen का symbol is O2 and magnesium oxide का symbol MgO, and this one, this particularly has been expressed in words। both are chemical reactions, इनका representation अलग अलग है। so let's again move forward। आप लोग कुछ points जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा easy कर देता हूँ। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हम या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए इस एरो से पहले वाले यानी कि ये लोग जो होते हैं इनको हम कहते हैं यानी जो चीजें आपस में रिएक्ट करती है ना रिएक्शन, उनको मैं बोलता हूं रिएक्टेंट्स। एंड द वन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड यानी उस रिएक्शन से जो चीज बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। सो एरो से पहले वाला याद रखने के लिए आप कह सकते हो रिएक्टेंट्स होता है, एरो के बाद वाला प्रोडक्ट होता है। और एक खास बात ये भी होती है कि इस एरो के ऊपर हम कुछ स्पेशल चीजें या इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं पहले ये कि केमिकल इक्वेशन का काम क्या होता है। केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड सो एज टू गिव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिएक्शन, कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या क्या फिनोमेना है, क्या क्या चल रहा है, वो सब हमको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मिल जाता है, छोटे से छोटे फॉर्म में मिल जाता है। कैसे कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कवर हो रही है। और क्या क्या चीजें हो रही है, और क्या क्या चीजें हो सकती है कि आप उसे हीट करने का सिंबल दे सकते हैं, या फिर वहां पर अगर आप कुछ ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं इस एरो के ऊपर। कोई कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, कैटलिस्ट मैं समझाऊं आपको तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को तेज कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। आप आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से जानेंगे कैटलिस्ट के बारे में। सो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस रिलेशन के लिए काफी स्पेसिफिक होती है, जैसे कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन होती है या कोई स्पेसिफिक प्रेशर पे रिएक्शन होती है, तो वो भी हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो आई प्रोवाइड यू नोट्स इन व्हिच ऑल ऑफ दिस इज रिटन। अभी बस आप लोग समझते हुए चले। सो लेट्स कैरी अहेड। एंड ऐसे ही अगर मैं रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखूं अगर कि पानी को बनाने की क्या प्रोसेस होती है, तो इट्स वेरी इजी। आपको बनाना क्या है समझते हैं। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है
और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है H2O के अंदर। Now this is the representation of hydrogen here, this is oxygen and this is water। और अगर इस सिस्टम में कोई भी तरीके का स्पेशल हमने स्पेसिफिकेशन यूज करा है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर ये रिएक्शन किसी एक x प्रेशर पे होती है तो मैं लिख दूंगा कि ये रिएक्शन जो है x atm पे हुई है, atm इज यूनिट ऑफ प्रेशर। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि y डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हुई है, इसमें z कैटलिस्ट का यूज हुआ है। तो ऐसी चीजें मैं एरो के ऊपर लिख देता हूँ ताकि मेरे रिएक्शन से रिलेटेड हर एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दिखा पाए। तो इज इट फाइन? It is all about the chemical equations. The next topic that we are going to study is about balancing of chemical equations. Balancing of chemical equation कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पर क्यों करते हैं ये हम अभी समझेंगे। देखिएगा अच्छी तरह, मैंने रिएक्शन लिखा है कि H2 plus O2 से H2। मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें रिएक्टेंट्स कौन है तो आप बहुत इजीली मुझे बता दोगे कि H2 और O2 यहाँ पर रिएक्टेंट्स है एंड H2O इज आवर प्रोडक्ट वाटर एग्जैक्टली बोले तो। लेकिन इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अ लॉ जो कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। नाउ व्हाट्स दैट पर्टिकुलर लॉ? इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। What was the law of conservation of mass exactly? It was very simple that in a particular system mass can neither be created nor be destroyed। कि mass को आप न तो बना सकते हैं न खत्म कर सकते हैं। mass जितना है उतना ही रहेगा, उसे न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, it's constant। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। इन द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में क्या है? हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, इसका मतलब ये तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन यहां सिर्फ एक ही है। तो एक ऑक्सीजन कहां गया? अगर हमने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा तो ये गलत हो जाएगी। व्हाई इज इट रॉन्ग? ये गलत है, ये बैलेंस नहीं है। Why is it not balanced? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मास है, ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया which is called the balancing of chemical equations, जिसमें हम इस रिप्रेजेंटेशन को एकदम करेक्ट रखने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट में जितने था उतना ही प्रोडक्ट में हो, ना तो हमें कुछ पैदा करना है ना कुछ खत्म करना है। समझ रहे हैं आप? सो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू मेक नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल। आपके रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जब आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स मेल खा जाएंगे या मैच कर जाएंगे, इक्वल होंगे, तो वी कैन से दैट द रिएक्शन इज एक्चुअली बैलेंस्ड और कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ वहां अप्लाई हो रहा है। बिकॉज़ वी कैन नॉट डिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स द नेचर्स रूल जिसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। सो व्हाट विल आई डू टू बैलेंस इट? मैं इसे बैलेंस कैसे कर सकता हूं? मैं अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, हम नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है सीखेंगे। तब तक के लिए इट्स वेरी सिंपल। अब एक एक एटम को चेक कीजिए। जैसे यहां मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? आई विल से ऑन द रिएक्टेंट साइड मेरे पास दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, करेक्ट। ऑन द प्रोडक्ट साइड मेरे पास हाइड्रोजन तो दो है और ऑक्सीजन अभी भी कितने हैं? एक ही है। तो क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, तो मैं पहले ऑक्सीजन पे फोकस करूंगा। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं कि H2O के दो मॉलिक्यूल्स कर दूं वहां पर, तो इधर साइड की कितनी ऑक्सीजन हो गई? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी 2 हो गया ना, करेक्ट। बट एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, सिर्फ ऑक्सीजन 2 नहीं हुए, हाइड्रोजन पे भी इस 2 का फर्क पड़ेगा। देखिए इसको इस तरीके से समझिएगा कि H2O का एक मॉलिक्यूल है, अगर मैंने यहाँ 2 मॉलिक्यूल कर दिए तो यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन है उतनी यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी ना। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस नंबर को नहीं छेड़ सकते। बाहर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हैं। एंड आई टोटली विश कि आप लोगों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ज्यादा कोई डिफरेंस समझने में दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आप सब बहुत स्मार्ट हैं और 9th क्लास के अंदर ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई हमारे सिनेरियो में
कि यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए हैं, यहाँ के बराबर आ गए रिएक्टेंट के, बट गड़बड़ी हो गई, हाइड्रोजन पे भी उसका फर्क आएगा, हाइड्रोजन भी डबल हो गया और अब 4 हो चुके हैं। तो इस चीज को सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ पर भी मेरे हाइड्रोजन वापस कितने हो जाएंगे, 4, and now you can see everything is balanced, oxygen balance, hydrogen balance. So now this equation is absolutely correct क्योंकि अब बैलेंस है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, तोड़ नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो तो मैंने कैसे करा है, पहले मैंने ध्यान दिया कि मेरा कौन सा आइटम कम है, मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश करी, एक एक करके मैंने हर आइटम पे ध्यान दिया और उसके नंबर्स को यहाँ पर और वहां पर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल कर दिया। सो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, आज हमने 2-3 चीजें पढ़ी कि केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज को कैसे स्पॉट करते हैं, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में एक अलग लेवल पे पढ़ेंगे, एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप लोग सब अच्छी तरह समझते हैं व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो टिल देन रिवाइज व्हाटएवर वी हैव understand today and we'll see each other for the next class. Thank you.